آغاز میں آپ کو بتائیں دہشت گردوں کو کون واپس لایا، کیسے خیبر پختونخوا دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 417 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ یہ روپے کہاں استعمال ہوئے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، یہ پیسہ خدا جانے کہاں خرچ ہوا۔ یہ پیسے خیبر پختونخوا کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بہتری کے لیے استعمال ہونا تھا۔ وزیر اعظم نے سوال کیا کہ کس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، یہ چپتے سوالات قوم پوچھ رہی ہے، اب ان کا جواب دیں۔ فی الفور مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو دہشت گردی مزید پھیل جائے گی۔ دوبارہ یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کون واپس لے کے آیا۔ یہ آج پوری قوم پوچھ رہی ہے دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہو گیا، کس طرح کے پی دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور یہ بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے فی الفور مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہوگی۔ کس نے کہا تھا یہ جہادی ہیں اور پاکستان کے دوست ہیں؟ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب یہ بالکل پاکستان کے امن اور ترقی میں حصہ ہوں گے۔ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم مجھ سے اور آپ سے اور تمام ان مقتدر شخصیات اور ادارے سے پکار کر پوچھ رہی ہے کہ اس کا جواب دیں۔ اس کا 2010 سے لے کر آج تک کے پی کے 417 ارب روپے ان کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 417 ارب روپیہ خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کہاں گئی ہے؟ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور حقائق کو مسخ کرنے کی اور کوئی کوشش نہیں ہو سکتی۔ اور اسی تناظر میں وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے سانحہ پشاور کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پر شرکاء کو اعتماد میں لیا۔ وفاقی کابینہ نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ ارکان نے دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا، جبکہ اجلاس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ وزیر اعظم خود کریں گے۔ دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے؟ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کو یہ دو وہ دو، کبھی کہا جاتا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کرو۔ اس دوران ریاست کہاں ہے؟ سانحہ پشاور سے متعلق سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ریمارکس۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ایک جج نے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ دی، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ آج دہشت گرد 2 بندے ماریں گے، کل کو 5 مار دیں گے۔ پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ لمبی داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان یا اچھا انسان نہیں بن جاتا۔ ہمارے ایک جج کو مار دیا گیا، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اور امریکہ نے بھی پشاور میں خودکش دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ترجمان ایڈرین واٹسن نے کہا ہے کہ پشاور کی مسجد میں خودکش حملہ افسوسناک ہے، نمازیوں پر حملہ ناقابل معافی عمل ہے، دہشت گردی ناقابل دفاع ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ پاکستان کی بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ سانحہ پشاور میں شہداء کی تعداد 101 ہو گئی ہے۔ 49 زخمی اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکے کے 48 گھنٹے بعد پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں، نماز ظہر ادا کی گئی۔ واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا۔ سی سی پی او پشاور اعجاز خان کہتے ہیں کہ دھماکے کی جگہ سے اب تک جو شواہد ملے اس میں دھماکہ خودکش تھا۔ تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ پولیس لائن ریڈ زون کی سیکیورٹی کا سرنو جائزہ لے رہے ہیں۔ کوشش ہے کرائم سین سے تمام شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کیا جائے۔ دھماکے کی جگہ سے ملنے والے شواہد فورینزک کے لیے ارسال کر دیے ہیں۔ سانحہ پشاور میں سیکیورٹی لیبز کا ذمہ دار کون ہے؟ دہشت گرد بارود لے کر شہر کے مرکز تک کیسے پہنچا؟ ریڈ زون کی سیکیورٹی میں غفلت کیوں برتی گئی؟ حساس علاقے کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کیوں نہیں کی گئی؟ شہر کے داخلی راستوں پر چیکنگ کا کیا نظام ہے؟ دہشت گرد خاموشی سے گھناؤنے منصوبے کی پلاننگ کرتا رہا، مسجد کی ریکی ہوتی رہی، سیکیورٹی اداروں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ کیا پولیس لائن سے کسی نے سہولت کاری کی؟ سانحہ پشاور نے خیبر پختونخوا پولیس کی تربیت، سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بالکل، اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق
IG खैबर पख्तूनख्वा, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर अली शाह साहब। सर, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल फंड्स मिल रहे थे, फिर सेफ सिटी मंसूबा क्यों नहीं बन सका और CTD के पास वसाइल क्यों कम है? ये तमाम तर सवालात उठाए गए हैं वज़ीर आज़म की जानिब से। ये बहुत ही पर्टिनेंट सवालात हैं। मैं खुद इस सूबे का होम सेक्रेटरी था, उस वक्त ये मंसूबा तरतीब दिया गया था और इसको सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी लाया गया। कंसल्टेंट्स भी नादरा कंसल्टेंसी की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मुजरमाना गफलत है, इसके लिए फंड्स नहीं फराहम किए गए और एक वजह या दूसरी वजह के साथ ये इल्तिवा का शिकार रहा। मैंने इस बात पे जोर दिया कि अब मॉडर्न और क्वालिटी पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए और शहरों में कैमरे की आंख जो कि हाई रेजोल्यूशन कैमराज हो और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो जिसमें कि सॉफ्टवेयर हो, उसके बगैर बेहतर तरीके से मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके नज़दीक दहशतगर्दी के इन वाक़यात की क्या वजह हो सकती है? सवाल तो ये उठता है ना कि कैसे कोई शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, धमाका खेज मवाद वहाँ पर पहुँच जाता है, चेकिंग नहीं हो पाती है, किसकी नाकामी है सर ये? पहले तो मैं इसको मैक्रो लेवल पे लूँगा। जो हमारी कौमी पॉलिसी है इसको रीविजिट करने की ज़रूरत है। तमाम पॉलिसी स्टेक होल्डर्स ये बैठे और ये गुज़िश्ता 42 सालों में हमने जो पॉलिसीज़ बनाई थी बमशमूल अफगान पॉलिसी, उसका जैसे कि मुशाहिद हुसैन साहब ने भी असेंबली में बात की, उसका असर नौ जायज़ा ले और जहाँ इनको उसमें नकाइस गलतियाँ महसूस करें उनको ठीक करें और इसको सही सम पे डालें तो तब बात बनेगी। और अब मैं इस वाक़े की तरफ आता हूँ। यकीनन ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है और ये इसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है कि और ये वाक़या एक दिन में हो ही नहीं सकता, एट द स्पर ऑफ मूवमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक अजनबी शख्स को ये पता ही नहीं चलेगा कि पुलिस लाइन किधर है, पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद किधर है, किस वक्त नमाजी जमा होते हैं। तो ये तमाम उन्होंने रैकी की होगी, इससे पहले यहाँ पर उनकी आमदोरफ्त होगी और फिर जब उन्होंने पूरी पुलिस की मामूलात को जांच लिया तो उसके बाद ही ये बारूदी मवाद वहाँ पर और यहाँ पर CCPO के अलावा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है जो कि लीड एजेंसी है दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसका काम है गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, जिसका काम है तफ्तीश करना, जिसका काम है ऑपरेशंस करना। इनके होते हुए इस चीज का होना इस बात की निशानदही कर रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस का निज़ाम वो इंतहाई कमजोर हो चुका है। अच्छा, तो इंटेलिजेंस निज़ाम को भी बहुत बेहतर बनाना चाहिए। अच्छा अख्तर अली शाह साहब, जब हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी मजबूती की बात कर रहे हैं, बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो जिन फंड्स का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, अगर हम माजी में देखा जाए तो आपके ख्याल में या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कितने कोई फंड्स इस्तेमाल हुए हैं पुलिस की बेहतरी के लिए, उनको इक्विप करने के लिए? मैं ये कहूँगा अगर हम इसका दहशतगर्दी हम अगर 2006 को एज ए बेस लाइन लें तो 2022 और 23 में हम दाखिल हो चुके हैं, तो इसमें बतदरीज बेपनाह अगर वो 4 अरब थे तो फिर बाद में 24 अरब तक पहुंचे हैं। तो और इसी तरह अफरादी कुव्वत 32,000 थी, आज वो 1,24,000 है। पहले इनके पास सिर्फ सब मशीन गन्स होती थी जिसको हम AK-47 कहते हैं, आज इनके पास 12.27 भी है, हर किस्म का जदीद असला भी है। पहले का एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग कॉलेज जो अभी INL के मदद से नौशहरा में बना है, हर साल वहाँ से एक बहुत बड़ी खेप तैयार होती है एंटी टेररिज्म पर्सनल की, उनके पास भी हर किस्म के हथियार है, हर जिले में एंटी टेररिज्म। अख्तर अली शाह साहब, आपके मुताबिक पुलिस के पास जो इस वक्त सहूलियात हैं वो दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए इस वक्त काफी हैं? मैं ये कहूँगा कि ये दहशतगर्दी कल तो सिर्फ यहूदी हुई, इससे पहले तो बिल्कुल शोरश थी, मतवाजी हुकूमतें बनी हुई थी, तो इसी पुलिस ने उनका मुकाबला भी किया था। इनमें कैपेसिटी भी है, इनमें हौसला भी है। मजीद मैं कहता हूँ कि इनकी क्वालिटी को जरूरत है।
मसलन थर्मल जो नए वेपन्स आए हुए हैं, थर्मल इमेजिंग है, उनकी जरूरत है। लेकिन आज भी मैं ये कहूंगा कि काफी तादाद में इनके पास इक्विपमेंट्स हैं। पहले GSM लोकेटर्स थे, आज इनके पास है, आज से चंद साल पहले नहीं थे। ठीक है सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि आज ये लोग बहुत इक्विप्ड हैं। आपका पॉइंट हम तक आ गया, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी दौरान अयाज वजीर साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा सर, अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अफगान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या इन हालात में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और आवाम को एक जगह इकट्ठे होना होगा, वरना इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं। ज़रब-ए-आज़म सबसे बड़ा था, दावे किए गए थे कि दहशतगर्द मारे गए या भगा दिए गए, लेकिन अब ये फिर आ गए। तो एक पॉलिसी ऐसी वज़ा करनी चाहिए जो आवाम की रिफ्लेक्टिव पॉलिसी हो। अब पॉलिसियाँ बनती हैं इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद उस जगह जहाँ पे आग लगी है उससे बहुत दूर है। ऐसे लोगों का मशवरा, ऐसे लोगों के साथ मुशावरत करें जिन पे रोज ये मसले होते हैं, और वो इनका एक क्या कहते हैं हल तलाश करने में मददगार साबित हो सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे अभी ये 2 हफ्ते पहले जो वाना साउथ वजीरिस्तान में एक धरना हुआ था लोगों का, कोई 10,000 लोग थे, एक हफ्ता धरना दिया, फिर हुकूमत ने उनके मुतालबात मंजूर कर लिए, तो उस दिन से आज के दिन तक वाना में एक वाकया नहीं हुआ। अवाम और हुकूमत जब मिल जाए फिर किसी को। ठीक है सर, ये बड़ा अहम मामला है, दहशतगर्दी से किस तरह से निपटना है, यकीनी तौर पर अब इस पर जोर देने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद थे अख्तर अली शाह साहब, साबिक IG KPK, इसके अलावा अयाज वजीर साहब, माहिर अफगान उमूर, दोनों का बेहद शुक्रिया। अभी आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मजीद जानेंगे आदिल तनोली से। जी आदिल, आगाह कीजिए। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन को धमकाने और कार सरकार मदाखलत केस में तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत जो है वो एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने मंजूर कर ली है, और 20,000 रुपये मुचलकों के एवज जो है फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर की गई है, जिसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इस शर्त पर जमानत दे रहे हैं कि फवाद चौधरी आइंदा इस तरह की गुफ्तगू नहीं दोहराएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से बाबर अवान जो है वो इस केस में पेश हुए हैं। बाबर अवान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है कोई आईनी इदारा नहीं है, सिर्फ एक अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहा है। फवाद चौधरी का बयान जो है उसको इस तरह पेश करना जो है वो तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत जो है उसको मुस्तरद करने की जो इस्तदा थी वो एडिशनल सेशन जज की जानिब से मुस्तरद कर दी है, और फवाद चौधरी की जमानत जो है 20,000 रुपये मुचलकों के एवज मंजूर करके हुक्म जो है अब से कुछ ही देर बाद तहरीरी आर्डर जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो भी अदालत में पेश हुए हैं, और उनकी जानिब से भी फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत जो है उसको मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है। तफ्तीशी अफसर के बारे में ये बताया गया है कि तफ्तीशी अफसर जो है मेडिकल लीव की बिना पर जो है आज अदालत के सामने पेश नहीं हो सके, ताहम अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत जो है वो 20,000 रुपये मुचलकों के एवज मंजूर कर लिया, और साथ ही साथ अदालत की जानिब से ये शर्त भी रखी गई है कि उम्मीद है कि आइंदा वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं दोहराएंगे। जैसे ही फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की गई है, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो उनके हल्का बाब से आए हुए लोग हैं, वो भी अदालत के बाहर मौजूद थे, और उनकी बात। ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया आदिल तनोली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने शाहिद खाकान अब्बासी के नून लीग के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा देने की तस्दीक कर दी है। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़कर उनके कद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहिद खाकान बड़े लीडर हैं, पार्टी को उनकी जरूरत है। अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया, वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो पॉलिटिकल इंसाइट है, उनकी सियासी तजर्बा है, मेरा ख्याल है पार्टी। साहब, आप उनके इस्तीफे की तस्दीक कर रहे हैं एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? मरियम ने अभी कर दिया।
अहम खबर आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज सियासी मैदान में मुतहरिक हो गई हैं। आज से मुल्क भर में तंजीमी दौरे शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज बहावलपुर रवाना हो गई हैं, जहां वो 2 रोज तक क़याम करेंगी। कल पार्टी के तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी, जबकि मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान, 9 फरवरी को एबटाबाद और 15 फरवरी को डीजी खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर छापे का मामला। पुलिस का कहना है कि कुंजा हाउस पर छापा चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। वजाहत हुसैन अब मूसा इलाही पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गुजरात के नवाही इलाके कोटला अरब अली खान के सरकारी अस्पताल में तख्ती लगाने के मामले में हंगामा आराई का वाक़या पेश आया था, जिसका मुकदमा चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में मूसा इलाही ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर रखी है, जबकि चौधरी वजाहत हुसैन ने ताहाल जमानत हासिल नहीं की। पुलिस की भारी नफरी ने आज सब कुंजा हाउस, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह है, वहां छापा मारा था। और बड़े बड़े मुतालबे कर दिए गए हैं। पाकिस्तान बिजली और गैस सेक्टर में 4000 अरब से जायद गर्दिशी कर्जे पर काबू पाए। IMF का हुकूमत से बड़ा मुतालबा। बिजली पर सब्सिडी और नुकसानात में कमी, जबकि रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। हुकूमत ने टैरिफ में मरहला वार इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है। इसी पर देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात जारी। IMF ने बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने पर जोर दिया। बिजली की कीमत में 7.5 से 10 रुपए फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ारत खजाना हुक्काम के मुताबिक बिजली टैरिफ में मार्च तक 3 रुपए फी यूनिट, जबकि मई तक मजीद 70 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। अगस्त 2023 तक बिजली की कीमत में मरहलावार 6 रुपए फी यूनिट इजाफा हो सकता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसके अलावा होगी। IMF ने बिजली पर सब्सिडी में कमी का मुतालबा किया। हुकूमत ने 100 के बजाय 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ दी। काम के मुताबिक मौजूदा माली साल में गर्दिशी कर्ज में 952 अरब रुपए की कमी की जाएगी। 675 अरब रुपए की सब्सिडी भी खत्म करने का प्लान है। टैरिफ में इजाफा करके 200 अरब रुपए सार्फिन से पूरे किए जाएंगे। IMF ने इस्लाहात के लिए वसीतर सियासी इत्तिफाक राय पर भी जोर दिया है। और अब आपको बताएं, कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में गैस की अदम फराहमी पर मकीन सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने मरकजी सड़क बंद कर दी है। मजीद जानेंगे वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताएगा क्या मुतालबात हैं इन लोगों के? जी बिल्कुल, शहर में गैस का बहरान शदीद होने के नतीजे में एहतजाज अब आम सी बात हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरशाह मोहम्मद सलमान रोड पर सूद सदरन दफ्तर के बाहर, जहाँ बल्दिया टाउन के मौक़िफ़ से आए हुए मकीनों का एहतजाज जारी था, लेकिन अब तक मसला हल न होने के बाद इलाके के मकीनों ने एहतजाजी तौर पर धरना दे दिया है और हसन स्क्वायर से स्टेडियम जाने वाला ट्रैक और स्टेडियम से हसन स्क्वायर आने वाला दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसने अब तक कोई ऐसा मौसर किरदार अदा नहीं किया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये वो इलाके के लोग हैं जो बल्दिया टाउन, कायम खानी मोहल्ला, इत्तेहाद टाउन, मदीना कॉलोनी से आए हैं। उनका ये मुतालबा है कि उनको गैस फराहम की जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त सड़क का दोनों हिस्सा उन्होंने धरना दे दिया है, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और वाहिद मुतालबा उनका ये है कि उनके इलाकों में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब अच्छी खबर नहीं है, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर आ गई है। मशरूबात, मसालों और शू पॉलिश समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। साबुन, टूथपेस्ट और क्लीनर की कीमत भी बढ़ गई है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर जूतों की पॉलिश 35 रुपए और कैचअप 30 रुपए तक महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध के डब्बे की कीमत 40 रुपए और नूडल्स की कीमत 35 रुपए तक बढ़ गई। मशरूबात 60 रुपए तक महंगे हो गए। टूथपेस्ट 20 रुपए और टॉयलेट क्लीनर की कीमत में 17 रुपए तक इजाफा किया गया है। बिरयानी मसाले 10 रुपए और अचार की कीमत में 87 रुपए तक का इजाफा हो गया है। नमक की कीमत भी 20 रुपए बढ़ गई है। और ख़वातीन के लिए अच्छी खबर है, कराची की ख़वातीन की दुआएं रंग ले आई हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए उनकी अपनी बस सर्विस का आगाज़ हो गया है। पिंक पीपल्स बस सर्विस कराची की सड़कों पर रवा धवा हो गई है। बिल्कुल, नुमाइंदा ख़ुसूसी रेहान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से ख़वातीन के लिए उनकी अपनी बस सर्विस चलाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद 1 फरवरी से इस ऐलान को अमली जामा पहना दिया गया। ये मैं वाज़े कर लूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ यहाँ तक इसकी तादाद नहीं रहेगी, जितनी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उससे ज़्यादा इसको हम बढ़ाएं भी, इसकी तादाद को बढ़ाएंगे।
पिंक बस का किराया 50 रुपए है, जबकि 5 साल तक की उम्र के अफराद से कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। बस में 2 माजूर अफराद की गुंजाइश भी मौजूद है, इनसे भी किसी किस्म का किराया वसूल नहीं किया जाएगा। खवातीन ने बस के चलने पर सुकून का सांस लिया और इसे एक अहम कदम करार दिया। तो मर्दों के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट ईजी, और कराची में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। पिंक पीपल्स बस सर्विस में 24 खवातीन के बैठकर सफ़र करने की सहूलत मौजूद है, जबकि 36 खवातीन रश के औकात में खड़े होकर बस में सफ़र कर सकेंगी। शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया कि 7 फरवरी तक कराची में पिंक पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करने वाली खवातीन से कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा और ये सर्विस उनके लिए मुफ्त होगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज कराची की खवातीन के लिए इसलिए बहुत बड़ा कदम है कि अब से सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो शहर में सफ़र कर सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कराची की खवातीन के लिए अच्छी खबर है कि शहर में पीपल्स पिंक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। बस मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलेगी। सुबह 7 से रात 10 बजे तक सर्विस दस्तयाब होगी। इस सिलसिले में खवातीन क्या कह रही हैं आपको दिखाते हैं। बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। मैं तो पहले लड़कियों को और अपने आप को भी मैं ये मुबारक दूंगी कि इतना मतलब ये सिंध गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ये हम लोगों के लिए इजाद किया है, और ऑब्वियसली हमारी फैमिलीज़ भी जो हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री होंगी। अब इस बस के आने से बहुत फ़ायदे होंगे, हमारे रूट्स ईजी हो जाएंगे और काफ़ी सेफ़ है। अब क्योंकि पिंक बस सर्विस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन होंगी, लड़कियां होंगी, तो ये हमारे लिए बहुत सेफ़ है और बहुत आसानी से हम ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। माशाल्लाह, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। सिंध गवर्नमेंट को हम खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जिन्होंने लेडीज़ के लिए इतना अच्छा कदम उठाया है। बहुत ही सेफ राइड होगी हमारे लिए, तो बीइंग अ वर्किंग वुमेन आई थिंक इट्स अ बेस्ट राइड टू टेक। प्राइस भी कम है इसकी, टिकट की बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत अच्छी रीज़नेबल मुनासिब प्राइस है, सेफ़ भी है। प्लस आपको ये मॉडल कॉलोनी से लेके टावर तक मतलब एक तरीके से पूरा कराची आप आराम से एक्सेसिबल हो गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए एक सेफ़र ऑप्शन है और एक मखसूस किया गया है कि वो लोग सुकून से ट्रैवल कर सकें। एक सबसे बड़ी बात सेफ है। कराची की सड़कें इतनी ख़राब हैं तो एक बहुत अच्छी सहूलत है कि वो बैठ के सफ़र कर सकती हैं। सिर्फ फीमेल्स होंगी इसमें, तो बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है ये, एंड हम बहुत सेफली ट्रैवल भी कर लेंगे यूनिवर्सिटी से घर तक। ज़्यादा सेफ फील करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और आपको बताएं, लाहौर की सड़कों पर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले 62 लाख ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। 72 लाख व्हीकल्स के शहर में 1 साल के दौरान सिर्फ 30,000 लाइसेंस जारी हो सके। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख से जायद आबादी के इस शहर में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की तादाद 72 लाख तक जा पहुंची है, लेकिन मसरूफ शाहराहों पर पहिया चलाने का लाइसेंस सिर्फ 10 लाख ड्राइवर्स के पास, बाकी सब बगैर लाइसेंस ही घूम रहे हैं। लाइसेंस बनाना मुश्किल है क्योंकि वो ट्राई जो देनी होती है ना, ट्राई में अक्सर फेल ही कर देते हैं। क्योंकि जो पॉइंट्स है जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएं। ट्रैफिक हुक्काम को सिस्टम के नकायस से दूर करने, सेंटर्स बढ़ाने समेत मुख्तलिफ इकदाम करने का चैलेंज दरपेश है। 2-3 स्ट्रेटजीज हैं जो मेरे ज़हन में है। सबसे पहले तो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाए। सेकंड ये कि जो लाइसेंस सेंटर एक शिफ्ट में काम करता है उसको 2 शिफ्टों में काम करवाया जाए। तीसरा मेरे ज़हन में ये है कि वो जो लोग जिन्होंने लर्नर बनवाया उनका लाइसेंस भी वहीं पे बने। ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल 3 लाख से जायद ड्राइवर्स ने लाइसेंस के हसूल की कोशिश की, मगर सिर्फ 30,000 ही कामयाब हुए। लाइसेंसेस के इजरा में बेहतरी के लिए हुक्काम के दावे कितने कारगर साबित होते हैं, इसका जवाब आने वाले चंद महीनों में मिल जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अहम खबर आ रही है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में मुफ्त अद्वियात देने का फैसला किया है। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि मुखय्यर हजरात की मदद से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा सकेंगी। बात करेंगे, दानियल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, अच्छा इनिशिएटिव है ये? देखिए, निगरान हुकूमत का ये अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में मुफ्त अद्वियात देने का फैसला किया है। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक मुखय्यर हजरात की मदद से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने का सिलसिला जो है ये शुरू किया जाएगा। फैसलाबाद के अस्पतालों की ओपीडी से आगाज होगा इसका, जहाँ पर मुफ्त अद्वियात के सिलसिले का आगाज होगा, और फिर उसके बाद लाहौर समेत पंजाब के जो दीगर टीचिंग अस्पताल हैं उनकी ओपीडीज में भी जल्द मुफ्त अद्वियात मिल सकेंगी। ये जो मुफ्त अद्वियात वाले मेडिकल स्टोर्स हैं उनका नाम आपकी फार्मेसी रखा जाएगा, जहां से जो मरीज ओपीडीज के अंदर जाते हैं, जो अस्पतालों की इमरजेंसी या इंडोर में एडमिट
तो नहीं होते, लेकिन ओपीडीज में जाकर चेकअप करवाते हैं, उनको भी यहाँ पर मुखैर हजरात की मदद से मुफ्त मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकेगी। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। अंधेरे में टॉर्च की अहमियत तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां बैटरी, चार्जिंग या सोलर पैनल से चलने वाली टॉर्च या तो दस्तयाब ही नहीं होती या फिर धोखा दे जाती है। ऐसे में लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़हीन नौजवान ने इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत पर चलने वाली टॉर्च ईजाद की है। इस नौजवान से मिलवा रही हैं अलीना शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, पंजाब के ज़िला लोधरा से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने ये टार्च बनाया है, तो ये जो टार्च है ये यूनिक किस्म का है। ये आपकी बॉडी की हीट से चलता है। आप उसको पकड़ के रखेंगे तो आपकी हाथों की हीट से ये चलता रहेगा। जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। आइडिया इस तरीके से आया कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग जिस तरीके से थी, कभी लाइट आती है कभी नहीं होती, एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, गरीब बच्चे हैं, उनके पास तो कुछ होता भी नहीं है और वो रात को पढ़ भी नहीं सकते। इस चीज़ को सोचते सोचते फिर इसका फिर आइडिया या फिर इस पर काम करते रहे। फ्यूचर में ये कानकुनी हो गए या हमारी मतलब है फोर्सेज हो गए, उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसा एरियाज हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। बैटरीज जो होती हैं उनका भी एक टाइम होता है, उसके बाद उनको रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज करने के लिए आपको दोबारा एनर्जी चाहिए, तो 24 आवर्स तो कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है। 24 आवर्स अगर बंदा जिंदा है तो बंदे की एनर्जी अवेलेबल है। हीट की सूरत में तो ये पॉसिबिलिटी थी। प्लेटफॉर्म था, नाम है हैक अ डे, तो वहाँ पर इसी प्रोजेक्ट को लेके वहाँ साइंस कंपटीशन होता है। वहाँ पर जाते ही अवार्ड भी मिल गया, कैश की सूरत में $1000 मिले थे। और अभी खबर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़रा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात और मालम जब्बा केस रीओपन करने की हिदायत कर दी है। ऑडिटर जनरल को नैब केपी में करप्शन की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। हुकूमतें बदल गईं लेकिन नैब की कारकर्दगी बदली, न ही उस पर उठने वाले सवाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन केसेस पर कार्रवाई न होने पर सख्त बरहम। चेयरमैन नूर आलम खान बोले, BRT, बिलियन ट्री केसेस, टैक्स बुक बोर्ड और हेल्थ सेक्टर समेत मुतअद्दिद मंसूबों में करप्शन के केसेस पर नैब ने कोई पेशरफ्त न की। खैबर पख्तूनख्वा में अरबपति बन जाने वाले कई साबिक वज़रा की आमदन से जायद असासों की तहकीकात का हुक्म। कमेटी ने मालम जब्बा केस दोबारा खोलने की भी हिदायत कर दी। चेयरमैन ने सूबे में बगैर इश्तिहार मुलाजमतें दिए जाने, नैब अफसरान, DGs और उनके अहले खाना पर इल्जामात की तहकीकात का टास्क ऑडिटर जनरल को सौंप दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2018-19 के दौरान अरबों रुपए की बेजाब्तगियों का भी इंकशाफ। बताया गया कि 19 अरब 23 करोड़ की इमदादी रकम 51 फ्रेंचाइजेज के जरिए मुतासरा अजला से बाहर ही तकसीम कर दी गई। 39 अजला के मुतासरीन को तो अदायगियाँ मुल्तान की एक ही मोबाइल शॉप से हुई। 23% अफराद तो रकम मिलने की तारीख से पहले ही वफात पा चुके थे। इजलास में सेक्रेटरी BISP ने बायोमेट्रिक समेत हुकूम के तरसीली निजाम में खामियों का एतराफ कर लिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।